Welcome you all. Freedom in mind, faith in words, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. Today we have gathered. Today we here celebrate that freedom. Before we proceed with our program, I would like Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Dignitaries, guests and delegates, with great joy, immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to present here or I would like to welcome a very energetic Thank you. Now let's enjoy some amazing performance by our talented students. We have patriotic songs, dances and speeches lined up. Each performance is a tribute to the spirit. And all my dear friends, my name is Arfa. Today is 15th August. We are celebrating our Independence Day with great joy. At first, I wish you all a very happy Independence Day with a great joy. At first, I wish you all a very happy Independence Day. India got independence from British rule on 15th August 1947. On this day, we remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Mangal Pandey and many others devoted their life for the independence of our country. So we should respect our freedom fighters. Independence Day is very important for every Indian. Independence Day is one of the national festival of India. Thank you. My school name is Sandhas Perumal English Medium School. गली गली में नारा है हिंदुस्तान हमारा है जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा I am a jellyfish. I have clear and colorful. Don't have a brain. Don't have eyes and I eat small fish and fish plants and other jellyfish. If you touch me, I will hurt you. Thank you. My name is Tanis. I am dolphin. I am a national athlete. I have
and moved side by side. My name is Usman Abilwad. I am first standard. My school name is Sunrise Paramount English Medium School. I am turtle. I also known as turtle. I have 4 legs and long neck. I have hard shell. No, my back. I live to swim. I live in water. Have you ever seen a mermaid? Here I am. I am a mermaid. I am a beauty of water. I am a daughter of ocean. I am a singing mermaid. Ocean. Thank you. My name is Adila Jamgi. I am oyster. Oval sham my heart. From out surf from. Thank you. I am a mermaid. Have you ever seen a mermaid? Here I am. Paramount English Medium School. Do you know who I am? I am a kid. I am a animal. I am Tom. रहनुमाओं की देन है हमें जो हम आजाद हैं। इस आजादी के लिए जिन लोगों ने खून बहाया है, आज उन शहीदों को याद करने का दिन है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि इस देश की आजादी के लिए जिन माओं ने अपने लालों को खोया है, हजारों लाखों लोगों ने अपने जान को कुर्बान किया है, तब जाकर हमें ये आजादी नसीब हुई है। तो हम अपने रहनुमाओं को, अपने चाहने वालों को कभी ना भूलिए। हमारे जो इस आजादी के अहम सिपाही थे, उन्हें हमें आज के दिन याद करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारे जो ईदें होती हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, जिस तरह हम कितनी आन शान से हमारे ईद मनाते हैं, उसी तरह ये भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये भारत देश का सबसे बड़ी आज का दिन ईद से कम नहीं है। ये ईद का दिन है, ये हमारे देश के हर एक नागरिक की आजादी का दिन है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज के दिन को बहुत जश्न के साथ और अपने जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उन लोगों को याद करने का दिन है। और मैं तमाम बच्चों से यही कहूंगा कि आप भी इस मैदान में आगे आने के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए आपको तालीम बहुत जरूरी है। याद रखिए, उस वक्त अंग्रेजों ने हमारे पर जुल्म किया, हमारी दौलतों को लूटा, हमको आपस में हर मजहब में बांटने की कोशिश की। तो आज भी कुछ नेता ऐसे हैं जो आज भी नफरतों का माहौल बनाए रखे हैं। जो उस वक्त अंग्रेज किया करते थे, आज ये चंद नेता भी कर रहे हैं। अपनी सत्ता के लिए, अपने वोट के लिए हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हर धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जो अंग्रेज किया करते थे, तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों से ये नफरती नेता कलम छीन कर उनके हाथों में हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा, मेरे बच्चों, कलम वो चीज है जो अच्छे से अच्छे हथियार को खत्म कर सकती है। और याद रखिए, जिसने कलम उठाई उसने ही इतिहास रखा, और जिसने हथियार उठाया उसने अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने खानदान का नाम भी बर्बाद किया। और उसकी डिग्री, अगर उसे डिग्री कोई मिलेगी तो उसे क्रिमिनल्स की डिग्री मिलेगी। आज कई नफरती नेता आपको क्रिमिनल्स की डिग्री देने के लिए आगे आ रहे हैं, आपको एक दूसरे पर
से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज आप आने वाले कल का इस देश का भविष्य हो। मैं उन नफरती बांटने वाले नेताओं को आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूं। अगर कोई आपसे ये कह दे कि हिंदू आपका दुश्मन है या कोई ये कह दे कि मुसलमान आपका दुश्मन है, तो उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना, उसके मुंह पर थूकना और कहना कि आप ही इस देश के सबसे बड़े अंग्रेज हो। आप इस देश के हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हो। इस देश में जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश को अलग करके सत्ता हासिल की थी, आज आप भी भाई भाई को अलग कर कर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारना। और याद रखिए, इस देश को आजादी यूं ही नहीं मिली। सब धर्मों के लोगों ने मिलकर जब एकता का सबूत दिया, तब जाकर हमारा ये देश आजाद हुआ। आज हमारे इस देश को दोबारा ऐसे नफरती कीड़ों से अगर आजाद करना है, तो याद रखिए हमें आपस में बंटना नहीं है। हम सबको एक साथ होकर इनसे मुकाबला करना है। और हमेशा याद रखिए, इंसान कभी भी जब उसका जन्म होता है तो वो नफरत उसके साथ नहीं आती। नफरत उसके अपने सिखाते हैं या अपने दोस्त सिखाते हैं या इस तरह के नफरती नेता सिखाते हैं। यहां तक कि अब मीडिया भी नफरत का बाजार लगाए हुई है, ताकि आप तालीम के मैदान में ना आकर इस तरह के नफरती माहौल में भटकते रहे और जुल्म करते रहे और जालिम बनते रहे और क्राइम के दुनिया में आगे बढ़ते रहे। तो मेरे भाइयों, ये एक सोची समझी साजिश है आज कई नेताओं की कि आप बच्चे तालीम के मैदान में आगे ना बढ़े। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि नफरत बांटने वालों के बातों पर अमल ना करें। आपका सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो आपका इल्म है। इल्म के हथियार को थामे रखना और उन नफरती कीड़ों को बता देना कि ये देश आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। और इस देश की आजादी के लिए जिस तरह हमारे सभी धर्म के लोगों ने मिलकर आजाद किया है, हम भी एक साथ मिलकर इस देश के और कामयाबी के लिए आगे जद्दोजहद करेंगे। और इस देश को जिस तरह अंग्रेजों ने देश के लिए नफरत पैदा की थी, देश को बांटने की कोशिश की थी, हम ऐसे नेताओं को, ऐसे संगठनों को, ऐसे लीडरों को जो किसी भी मजहब में हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और याद रखिए, आप ये जवाब तभी दे सकते हैं जब आप अपने हाथ में कलम उठाएंगे। तो मैं माँ बाप से भी यही कहूंगा कि अपने बच्चों को कलम उठाना सिखाइए, अपने बच्चों के हाथ में हथियार देना मत सिखाइए। अपने बच्चे कहां जाते हैं इसका ख्याल रखिए। कुछ ऐसे वैसे संगठनों में अपने बच्चों को ना भेजिए। मैं फिर से, मुझे यहाँ पर बुलाया आज आजादी के अहम दिन पर, मैं सनराइज के तमाम स्टाफ को और गुलनाज मैडम को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर देखा कि किस तरह बच्चे हर धर्म का लिबास यहाँ पर पहने हुए हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुसलमान कोई हिंदू नेता बना हुआ है, कोई हिंदू रहनुमा बना हुआ है, और मुस्लिम और हिंदू कोई मुसलमान बना है। ये इस देश का सबसे अच्छा मैसेज है। और इस देश में हमेशा याद रखिए कि जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो गोरे अंग्रेज हो, चाहे आज के काले अंग्रेज हो, वो हमें लड़ाते रहेंगे, आपस में बांटते रहेंगे। तो मैं फिर से इस स्कूल में आकर इस खुशी का एहसास हुआ। यहाँ पर तिरंगा लहराने से पहले भी हिंदू धर्म के मुताबिक यहाँ पर पूजा पाठ भी की गई, उसके बाद झंडा लहराया गया। तो मेरा बोलने का मकसद यह है कि देश के हर एक नागरिक को, देश के हर एक मजहब का सम्मान करना भी जरूरी है। तो ये नफरत पैदा करने वाले कीड़ों की दुकान बंद हो जाएगी। मैं
आपसे यही कहूंगा, आप आने वाले कल का भविष्य हो और अपने भविष्य का ख्याल रखो और तालीम के मैदान में इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो जिस तरह हमारे रहनुमाओं ने इस देश के आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हुए इस देश में फैले हुए आतंकवादियों को खत्म करें और इस देश को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करें। मैं फिर से तमाम सनराइज स्कूल वालों का धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि यहाँ पर हर मजहब के बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पर हर टीचर मजहब के मौजूद हैं, हर चीज का यहाँ पर सम्मान होता है। मैं समझता हूं कि ये सनराइज एकता की मिसाल है। मैं फिर से दोबारा गुलनाज मैडम को बधाई देता हूं कि हर धर्म का, हर बच्चों का सम्मान करते हुए आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हुए इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम के मैदान में आगे बढ़ाइए। मैं तमाम सनराइज के स्कूल के टीचर्स को भी बधाई देता हूं कि आपने इन बच्चों की तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के बच्चों को आप अपने बच्चे समझकर इनको अच्छी शिक्षा दें। इतना कहते हुए मेरे अल्फाज खत्म करता हूं।